हाय फ्रेंड्स, आज हम एक और डर जीतने आ गए हैं और ये डर है फेयर ऑफ लूजिंग फ्रीडम। सो दीपिका, वेलकम टू दिस शो अगेन। Thank you, Viva. It is so good to be here. यस, सो दीपिका, आज हम जो बात करेंगे वो है फेयर ऑफ लॉस ऑफ फ्रीडम। सो ये आपने एक फेयर मुझे बताया कि ये एक खास तरह का फेयर होता है जब हमें लगता है कि हमारी आज़ादी जाने वाली है। इसके बारे में क्या आप सोचते हैं? बेसिकली विवा, ये एक ऐसा डर है जो 90% लोग एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता. दे आर सो यूज्ड टू ऑफ लिविंग अ डिपेंडेंट लाइफ that they don't realize that there's a loss of freedom. And when I say loss of freedom, guys, I mean there is not enough degree of self-control in everyday happening. How many decisions of daily life you take yourself? It's not about only taking suggestions, it's about making decisions. That's personal freedom. That's where your loss of freedom comes in. If you're always asking others for their opinion before making a decision, if you're always wanting help, if you're seeking support every time you need to make a decision, that's where you're losing your freedom. Taking suggestions is a different game, but not being able to make decisions just because you're more opinionated towards others, that's the loss of freedom. So when we talk about loss of freedom, it is that you already have the freedom, and then due to some circumstances, in some situation or some relationships, you fear that you may lose a freedom, Definitely. right? What you already have it. So that means कि हमारे करियर में और हमारी पर्सनल लाइफ में या हमारे रिश्तों में ये तो बहुत ही शायद आपने ये ठीक बात बोली कि हमें पता ही नहीं है कि ये कब होता है, बट महसूस ज़रूर होता है, बट इसको हम कभी डिस्कस भी नहीं करते हैं बिकॉज एहसास नहीं करते हैं इसका. सो टेल मी सम एग्जांपल्स अबाउट दैट. Some examples would be everyday life, like your parenting, your conditioning. How many parents are actually very opinionated of the fact that their children will make their own decisions? You will only be a guiding light or a supporting hand. You will not hold their hand. Okay. It also stems out of one's belief systems, one's cultural upbringing, how much value you attach to the whole idea of decision making rather than decision taking. Are you given enough autonomy to make your choices, to be aware of choices, to make your decisions, to walk on those decisions? I don't think so. Everybody has to watch out for their own self. I really want to ask everybody here, how many of you feel that you make your own decisions, you research about them? It could be your adaptability, moving from one place to another. It could be in your social expressions. How many parties you've attended or I've attended where we just went for the social desirability of parents? Was it our decision? No. We were always told that okay, जाना मुंह दिखा के आ जाना. तो वो फैसला हम नहीं लेते. अगर हम इतना सा फैसला नहीं लेते तो हम इतने बड़े कैसे लेते? तो हम फेयर कहाँ आता है कि हमारे किन चीज़ों की वजह से हमें लगता है कि हमारा जो ये फ्रीडम है कहीं ख़त्म ना हो जाए. ठीक है, हमने बोला जैसे कि भाई हमारी सोशल जैसे कंडीशनिंग है, और जिस तरह से हमारी कंडीशनिंग है, और अगर हमें दूसरी जगह जाना पड़े तो हमें एक डर आ सकता है कि पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, मुझे उस तरह का माहौल मिलेगा या नहीं मिलेगा जिस तरह से आई एम यूज्ड टू. सो वो फेयर की जो बात है वो कहाँ पे आती है, और कैसे? एक एग्जाम्पल जैसे आपने मुझे पर्सनल लाइफ के बताए, तो प्रोफेशनल लाइफ में भी शायद हम इसलिए किसी जॉब में फंसे होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम दूसरे में गए तो हमें हमारी फ्रीडम ना लूज़ हो जाए, या हम इसलिए फंसे हुए हैं और फ्रस्ट्रेटेड हैं और वहाँ पे फ्रीडम लूज़ हो चुकी है. व्हाट इज़ इट लाइक? I'll tell you, like very rightly put up, that you asked me a question about independence here. Yeah. That when we move from one place to the other, where is the fear? The fear is independence. When you leave your family and you go to another place, how confident you are for your independent decision making. If a girl like me moves from one town to another city in search of a career, how independently equipped she is to not misuse the freedom, to understand the concept of freedom, and to not let others invade in my freedom.
बहुत ही प्यारी बात बोली, क्योंकि मैं अभी सोच रही हूँ कि हम लोगों की जो जनरेशन, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है, वो कैसे अपने घरों से इतना और अपने मोहल्ले से और अपनी जगह से इतनी उनको मोहब्बत हो जाती है और उन्हें लगता है कि वो सेफ़ है वहाँ। सो वो कहीं पर अगर उन्हें कई, मैं ऐसे यंग कपल्स को कहती हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ मूव इन कर लें, कोई छोटे शहर, मतलब बी सिटीज़ कैटेगरी सिटी से हैं या सी कैटेगरी से, और उनके बच्चों को दिल्ली में या दिल्ली एनसीआर या मुंबई में जॉब मिली है, तो वो डरते हैं। और इवन यहाँ पे ही नहीं, अगर फॉरेन भी जाना पड़े तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, वहाँ की तो मैं अंदर के अंदर ही रह जाते हूँ, क्योंकि हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें वो फ्रीडम है जो हमें यहाँ पर है, चाहे वो भाषा की हो, चाहे हमें कल्चरल थिंकिंग की हो, चाहे किसी भी तरह से, यू नो, लाइक वेदर यू हैव योर ओन सर्कल, यू मे लूज योर फ्रेंड्स ऑल्सो, वेयर यू ऑलरेडी मेड योर ओन सर्कल एंड यू फील सेफ. So many, especially the old parents, they don't want to move out because that's a time they probably must be suffering from fear of lost freedom. Yes, and same is the case with the professional domains of life. How many of you and I are just stuck in some job profiles because of the structure of hierarchy? Because we fear that the hierarchy would not let us bloom. Or probably we are not defiant enough to let our voice be heard. How many of the corporate mind games that are played today are won over? So वहाँ पे लॉस ऑफ फ्रीडम बहुत महसूस है, हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि ये प्रोफेशन करना है, ये हमारे ख्वाबों का प्रोफेशन है. आज ही इनफैक्ट इससे पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए थे और दीपिका, आप भी मिले थे उनसे, और उन्होंने कहा था कि वो, उनका एक ख्वाब था कि वो इस इंडस्ट्री में, खास इंडस्ट्री में हमेशा से जाना चाहती हैं, और जब वो सब को छोड़ के अपने घर से वो दिल्ली आई और अब पिछले 1.5 साल से वो यहाँ पर है, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये इट्स जस्ट लाइक एनी अदर कॉर्पोरेट, इट्स नॉट दैट आइडियल थिंग व्हाट शी हैड बीन थिंकिंग एंड एस्पायरिंग टू गो एंड वर्क हियर, एंड द मोमेंट शी वाज हियर एंड शी फेल्ट that feeling of being stuck. Yes. That's what she was in fact mentioning. There's an aversive work culture, aversive to one's upbringing, aversive to one's space of freedom and the notion and definition of freedom that you are abroad with, that your professional domain does not allow you to have. Because when we talk about freedom, it's always, you know, the rights given to all. So we always say that we have a right to freedom, we have a right to choose, we have to right to, you know, education rights. So freedom becomes a fundamental right, and that's where we are threatened. हमें वो डर लगता है कि हमारी फ्रीडम चली जाएगी किसी भी चीज़ में, और वो एक डर आ जाता है और वो डर बैठ जाता है और हमें शायद अपनी ही नज़रों में एक सेल्फ डाउट ले आता है और हमें छोटा फील करा देता है, क्योंकि हम शायद आगे नहीं बढ़ पाते या हम खुल के नहीं आ पाते. तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो जब ये डर आता है लॉस ऑफ फ्रीडम का और तुम अवॉइड करते हो जैसे जाना कहीं पर, तो वो कौन से हैं ऐसे सिम्टम्स? जैसे मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे जब कभी लगे कि मैं कहीं जगह जाऊँ और मुझे वहाँ पे फ्री नहीं फील करती हूँ, तो मेरी तो बोलती बंद हो जाती है मेरी स्माइल बंद हो जाती है और मैं शायद एक जगह बैठ जाती हूँ. तो ये क्या सिम्टम्स होते हैं कि हमारी बॉडी बताने लगती है कि भैया आप फ्री नहीं हो? Definitely. Why not? And butterflies in the stomach? That's one of the major ones. When you stop smiling, you stop sharing, you feel anxiety, you feel restlessness, you feel engaged. Like she said, you have butterflies in your stomach and you don't want to express. You feel like a puppet, you feel like, why am I here? I'm not a fit here. और फिर हम एक्सक्यूजेस भी बनाते हैं. जैसे बच्चों को कहीं नहीं जाना होता तो वो कहते हैं कि नहीं, बस आज तो मतलब मम्मा पेट में दर्द हो रहा है, मम्मा यहाँ जाना है, मुझे अपने दोस्त के घर जाना. Probably because they know it, you know, since the childhood they know it. Then they are not free to express. Right, and they know that if they do this, they will not be in that freedom-oriented domain or zone of their own life. They fear going to a place. They fear being attached to a person. So many of us have been into not pleasant relationships because some or the other partner has been too challenging, too draining, and that caused a fear.
तो फिर हम उसे अवॉइड करने लगते हैं बिल्कुल। और शायद उनसे हम दूर होने लगते हैं, जी उस हाँ। सिचुएशन से, उस इवेंट से, उन रिश्तेदारों से। और हम तब फिर शायद तभी हम कहते हैं कि दोस्तों को हम चुन सकते हैं, पर सिचुएशंस को और रिश्तेदारों को हम चुन नहीं सकते। शायद हमें लगता है कि वहाँ पे हमारी फ्रीडम ख़त्म हो रही होती है। सो या दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग थिंग, दीपिका, what you said, that fear of loss of freedom. And this is one of the most general fears that everybody has, but it's just the timings and the association to it that we don't feel and realize it with it. You know what? Because I have this, as I'm into relationship coaching, so I have these clients, and some of these girls who've been always earning, and they were working for the best of the companies, and they're so happy. For some of the other reason, when they got married, and after some time, whether the baby was born or something, या घर में जैसे भी हालात थे, उन्होंने कहा कि भाई वो छोड़ देते हैं, और सडनली दे फेल्ट कि उनकी फाइनेंशियल पावर के अलावा भी उनकी जो वो फ्रीडम थी टू एक्सप्रेस, टू हैव दैट पावर, टू नाउ हैव दैट कॉन्फिडेंस, टू put their word, to put their opinion, to be free communication, that it was threatened. उन्हें ऐसा लगा कि वो शायद वो चला गया है, वो फ्रीडम चली गई है. Because there is a shift of autonomy, Vibha. The autonomy that lies with you before marriage, or when you are your independent head and heart, you take your own decisions, you make your own ways into the best of professional careers. But when you are in a married life, you definitely have a lot of people to listen to. But the point is, are you only listening, or are you making them the key holders of the lock of success, lock of personal peace, lock of freedom? If they have the key, then you are in the wrong place. मैंने कई ऐसे यूथ जो हैं अपना कमाने लगे हैं, उनमें मैंने ये भी सुना कि हम जब अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं तो पहले से ही हो जाता है कि नहीं, इतना पैसे का इसका ये करो, उसके पैसे का पहली आमदनी, इधर आओ उधर से, और चाहे हम कमा रहे हैं लेकिन हमें उस पैसे को खर्चने की फ्रीडम नहीं है. फ्रीडम के लिए, उस पैसे को खर्चने के लिए हमें किसी ना किसी से पूछना पड़ता है. और ऐसे भी मेरे साथ शेयरिंग हुई है कि यंग लड़कों की, कि उन्होंने कहा कि अगर हमें बाहर जाना है और हमें पता ही अच्छा है और हम लोन लेके भी जा सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी फेयर की वजह से हम में फेयर डाल दिया जाता है कि वो जो, और अगर उन्होंने वो बाहर काम कर रहे थे और अब वो अपने फैमिली के पास आए हैं, एंड सडनली बिकॉज ऑफ द डायनामिक्स जो शिफ्ट हो जाता है, फैमिली डायनामिक्स क्रिएट होता है नया, उसमें दे फील दैट देयर इज़ अ लॉस ऑफ फ्रीडम. सो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, चेंज ऑफ जॉब, और व्हेन यू आर नॉट वेल अंडरस्टूड, व्हेन यू आर नॉट फ्री टू कम्युनिकेट और लिसन टू योर और शेयर योर ओपिनियन, तब तुम्हारा, और रिपीटेड जब ये चीज़ें होती हैं और तुम्हें कहीं पर रोक दिया जाता है या टोक दिया जाता है, तो शायद वो फियर बनता जाता है. हाँ, और वो रोक टेम्पररी नहीं होती, वो रोक आपको पता होती है कि बहुत लंबे समय के लिए, और इतना लंबा समय आपको उस रोक में आप गुजार देते हैं कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. That's where the freedom gets feared. ओके, एंड इसमें डिपेंडेंसी भी फिर बहुत आ जाती है. इंसान जब इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब कि वो डिपेंडेंट हो गया. जी बिल्कुल, because the degree of decision making, the degree of dependency, because you're so made accustomed to asking, ये कर लूँ, वो कर लूँ. जब आप हर छोटी चीज़ पे पूछते हैं तो फिर बड़ी पे ऑटोमेटिकली पूछते हैं. और या ये क्यों कर दिया, पूछना नहीं था ये करने से पहले, ये चीज़ यहाँ से यहाँ क्यों कर दी. अरे इतनी छोटी बातों पे होता है कि फर्नीचर अगर उठा के इधर से उधर कर दिया, वो भी चीज़ बुरी मान ली जाती है. एंड देन समवन मे जस्ट क्वेश्चन कि डू आई हैव अ राइट टू बी फ्री इन माई स्पेस टू बी एंड टू चेंज समथिंग, टू मेक चेंजेस ऑल्सो. वी आर नॉट अलाउड. एंड सडनली प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दैट एक फियर आता है, एक अवॉइडेंस आती है, और फिर हम पीछे होने लगते हैं. That's where personal space is so important.
तभी फ्रीडम बहुत ज़रूरी है हमारे रिश्तों में और अपने ख्याल बताने के लिए, और बताने के लिए नहीं, वो फ्रीडम कि हम सोच सकते हैं, वी आर फ्री टू थिंक, टू हैव आवर थॉट्स, आवर बिलीव्स एंड आवर ओपिनियंस ऑल्सो। क्योंकि बड़े लोग ऐसे भी कहते हुए सुने कि तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना। सो ये चाहे वो मजाक में हो, लेकिन कहीं तुमने उनसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि विद फ्रीडम कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं दी, आपने ये इनडायरेक्टली बता दिया कि ट्रस्ट नहीं है या तुम ये कर ही नहीं सकते हो। तो हर इंसान का वो जो एक बेसिक राइट है, जो फंडामेंटल राइट है, जब वो नहीं मिलता है तो शायद वो उस फियर को कि ये कहीं लूज़ ना हो जाए, तो वो उन जगहों से उठ के शायद चला जाता है या दोबारा नहीं आता है, क्योंकि लगता है कि डर के। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डर है जो आपने ऐड किया था, टाइप्स ऑफ फियर। आई लव दैट। हाउ डू वी ओवरकम दैट? Let's come down to the action. How do we overcome this fear of loss of freedom? The very first step and the most basic step is to accept it, to realize it, to know it. I think that is acceptance is for all fears and all freedoms. Definitely, because everything begins with awareness, Vibha. If you pay attention, you are aware, then only you will be able to act upon it. If you are not aware of what your life is or what your name is, how will you derive a meaning out of your name? If you're not aware of being free, how will you ask for freedom or how will you strive for freedom? So accept that you do not have that freedom. Loss of freedom is no curse, but not asking for it or not working towards it is definitely somehow a curse. So accept that you do not have it, realize how much can you do to make it happen, and the third step would be being assertive. Start saying no. No is not a negative word, Vibha. When we, usually in our culture, we are not teaching our children to say no. हाँ, मतलब तुमने नहीं बोल दिया तो तुमने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया कि तुमने नहीं कह दिया, तो दैट मीन्स कि तुम यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, बिकॉज अथॉरिटेटिव रिलेशनशिप रहा, चाहे वो एडल्ट भी हो गए हैं, बट एडल्ट टू एडल्ट रिलेशनशिप हमारे कल्चर में शायद इतनी ईजिली है ही नहीं वो चीज़। वो पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप हमेशा रहता है। माई फादर इज़ 93 years old एंड स्टिल सेज तुम जितने भी बड़े हो जाओ मेरे लिए बच्चे हो, एंड आई हैव टू टेल हिम पापा अब आप बच्चे बन गए हो एंड आई एम लुकिंग आफ्टर यू, यू नो दैट कंसेप्ट, दैट वॉट एवर। But then it is something so interesting that I heard my parents saying that we are so confident of they are so confident of their upbringing that they are मुझे बहुत ही खूबसूरती, या मैं ये कहूँ कि मैं बहुत खुशनसीब रही, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से हमेशा ये सुनती थी कि उन्हें अपनी परवरिश पे हमेशा भरोसा था कि उन्होंने मुझे कैसा बड़ा किया और मैं जैसे भी जो चीज़ आएगी उसको बखूबी निभा लूँगी। सो ये मुझे ऐसा लगा कि मुझे फ्रीडम भी दी गई, मुझे चॉइस भी दी गई, मेरी ओपिनियन भी रही, और जहाँ लॉस ऑफ फ्रीडम हुई तो वहाँ पे मैंने डरी और बहुत डरी। तो मुझे एग्जैक्टली समझ आता है जो आप ये कह रहे हो कि फ्रीडम है और फिर उसके बाद उसका जाना, और उसका जब चले जाना तो वो डर डेवलप होना, फिर उसके साथ उसको अवेयरनेस से उसको एक्सेप्ट करते हुए कॉन्शियसली चेंज लाना, सेइंग नो, ये एक पूरा सर्कल है इनफैक्ट। यस, बिकॉज प्रॉब्लम ये नहीं है विभा कि आपने ना कहा, प्रॉब्लम ये है कि बच्चे को ये नहीं पता कि उसने ना कहाँ कहना और कहाँ नहीं कहना। अगर आपने आज ना कहना नहीं सिखाया तो कल कोई भी उस बच्चे का फ़ायदा उठा सकता है। तभी in their professional domains, if a person knows the relevance and the importance of saying no, he will never make a wrong decision and he will always be able to encounter, which is the next step towards any fear. So when you encounter the fear in the eyes, it automatically belittles. How many of you actually got that courage to look into your fears eye in eye and say, I will come back to you, I will combat you? We've not done it. Probably we've not been asked to do it. Yeah. And we've been not taught to do it. But this is not something to be taught. It is something to be fought. That's so beautifully said.
Yes, definitely. And fought, I feel that it's not only that fighting, it's not an external fight. It's an internal one. It's an internal fight. So it's not that कि जो मुझे डरा रहा है उससे मैं लड़ूं. वो अपने डर से जो मेरे अंदर है उसको डराना है, उसको हराना है. So it's always internal. Right. And this finally leads to a person's self-rediscovery. When you rediscover the real inner you that you had lost with your freedom earlier. So when you rediscover yourself, you rediscover yourself with the strength, with the wisdom, with the compassion, with the determination that you want to progress ahead in life amidst all your fears. Wow, so amazing. So knowing this, that freedom is your fundamental right, and fear तो आता रहेगा, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना और उसको हेड ऑन उसका सामना करना. और ये जो बैटल है वो इंटरनल है. अपने अंदर जब आप फियर को छोटा कर देते हो तो वो सामने जब आएगा वो भी छोटा होगा या अपने आप ही आके चला जाएगा. तो ये आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ या सीखी, मैंने सीखी और शेयर की. सो थैंक यू दीपिका. Thank you so much, Vibha. You've been such a wonderful host to all such brilliant conversations. Yeah, I always feel, let's make the best of conversations. Yes. So we'll be coming back again with other type of fears. So stay connected with us and write your comments and tell us what exactly you want. Thank you. Thank you.